الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا۔ ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے موقع اور محل اور مہینے کی مناسبت سے مسنون خطبے کے بعد آپ کے سامنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں بھی ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، ہمارے آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے آنے میں اور اس کے داخل ہونے میں، اس مہینے میں داخل ہونے میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی طرح سے تیاری کر رہا ہے۔ کوئی گھر کا مالک ہے تو اپنے گھر کی تیاری کر رہا ہے، گھر کی زیب و زینت میں لگا ہوا ہے۔ مساجد کے لوگ ہیں، انتظامیہ کمیٹی اس کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی رمضان آنے سے قبل اس کی ظاہری اور باطنی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ یہ بڑی خوش آئین بات ہے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، یہ جو احساس ہے رمضان المبارک کا مہینہ اتنا برکتوں والا ہے، اس کا جو احساس اگر میرے اور آپ کے دل میں ہے تو اللہ کا شکر منائیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اب چونکہ یہ مہینہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الشہور کہا ہے،
یعنی یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے شہر مبارک کہا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی برکتوں اور اس کی سعادتوں کے حوالے سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کو میں کروں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ شوق تھا میرے بھائی، ورنہ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، صدقہ وہ بھی دیتے تھے، ہم سے زیادہ وہ قیام اللیل کا اہتمام فرماتے تھے۔ شوق ہوتا انسان کو کہ انہوں نے آ کر کے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے جس کو میں کروں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے کہا فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہا اے میرے صحابی، اے میرے دوست، رمضان کے روزے رکھنا اللہ اگر توفیق دے اس کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے اور اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ایک پہلی بات۔ دوسری بات جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک دیہاتی تھے، صحابی رسول تھے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ایک بات یہاں پر رک کر کے ہم کہنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام سوال پوچھنے میں بڑا احتیاط فرماتے تھے۔ ایک روب تھا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب اور دبدبہ تھا، وہ یہی منتظر، اسی انتظار میں رہتے تھے کوئی دیہاتی آئے نبی سے سوال کر لے، ہمیں بھی علم ہو جائے۔ دیہاتی لوگ اصل میں بغیر کسی روک ٹوک کے اور آ کر کے گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حد درجہ احترام کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی بھی دیہات سے اگر کوئی شخص آتا تھا تو ہمیں خوشی ہوتی تھی آج ہمیں کچھ علم کی باتیں ملیں گی، سبحان اللہ۔ ایک دیہاتی آئے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے یا اعمال بتلا دیجئے جس کو میں کروں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ کہا دیکھو میرے بھائی، اللہ کی جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں نا، ان میں سب سے پہلی چیز یہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ گواہی دو کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں، 5 وقتہ نمازیں، ان کی پابندی کرنا، اگر صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو تو سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے تو رمضان کے روزے رکھنا۔ اتنا کہا وہ صحابی پلٹے اور پلٹ کر کے انگلی انہوں نے اٹھائی آسمان کی طرف اور اٹھا کر کے کہا اللہ کی قسم ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہہ دیا ہے لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا، نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا۔ ابھی وہ پہنچے بھی نہیں تھے مسجد نبوی کے باہر، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنتی دیکھنا تو اس کو دیکھو، سبحان اللہ۔ یہ نیتوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، اعمال بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا اور بہت ہی سعادتوں والا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے، سب کے لیے ایک بار دعا کر دیجئے، اللہ سب کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ امت کی مائیں بہنیں بھی آتی ہیں، آتے رہیں گے انشاءاللہ، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اللہ انہیں بھی یہ مبارک مہینہ اللہ نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں قیامت کا جو دن ہوگا کتنا عجیب و غریب دن ہوگا اور کتنا بڑا دن ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھائیوں نے اس تعلق سے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے، کسی نے کہا ہم جہنم کے اوپر خیمہ لگا دیں گے جب تک اپنے مریدوں کو بخشوا نہیں لیں گے، خیمہ نہیں ہٹائیں گے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا بھائی، لیکن قیامت کے اگر مناظر کو دیکھنا ہے سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں
30वें पारे का मुताला कीजिए, ऐसे अजीब व गरीब मनाजिर होंगे क़यामत के दिन। लेकिन प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? सुनन तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में सर रख करके आराम फरमा रहे हैं, लेटे हुए थे। इतने में क्या हुआ, माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क़यामत का दिन याद आया। उसकी हवलनाकी, सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगा, तपिश इतनी होगी, हरारत इतनी ज़्यादा होगी। उन्होंने सोच लिया, याद किया, और याद क्या करना था, सुभान अल्लाह, माई आयशा की आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगे, और वो कतरे जाकर के प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़े। पट से आपकी आंख खुल गई। आपने कहा, आयशा क्यों रो रही हो, क्या बात है, रोने की वजह क्या है, क्यों आंखों से आंसू गिर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, क्यों रो रही हो? माई आयशा ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये फरमाते हैं कि तुम्हें कि मुझे आयशा से बहुत प्यार है, आयशा से बड़ी मोहब्बत है, मैं आयशा को बहुत चाहता हूं। तो एक बात ये बताइए, कल जब क़यामत का दिन होगा, वो हवलनाक दिन होगा, क्या उस दिन आप अपनी चहेती बीवी आयशा को याद करेंगे? क्या मेरी किसी किस्म की मदद फरमाएंगे? प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, आयशा 3 मकामात ऐसे होंगे जहां हर कोई किसी को भूल जाएगा, नफसी नफसी का आलम होगा। सारे अंबिया किराम नफसी नफसी की आवाज और सदा लगाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला शदीद गुस्से में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन बहुत नाराज होंगे। सुभान अल्लाह। हर आदमी अपनी फिक्र करेगा, हर आदमी को अपने बचाव की फिक्र होगी। आयशा 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई किसी को याद नहीं करेगा। वो 3 मकामात कौन से होंगे, वो तफसील अलग है, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह। लेकिन प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ना कुछ लोगों को तौफीक देगा, वो मेरे आप के हक में गवाही देंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह के दरबार में फरियाद करेंगे। उनमें एक सुभान अल्लाह रोजा भी होगा। वो हदीस सुनिए ना, आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अस्सियाम वल कुरान युशफ़िआन लिल अब्द यौमल क़ियामा। रोजा और कुरान ये दोनों अल्लाह के दरबार में आएंगे। रोजा अल्लाह के दरबार में आकर के अल्लाह बोलने की ताकत देगा मेरे भाई, क़ुव्वत गोयाई अता फरमाएगा। रोजा आकर के अल्लाह के दरबार में कहेगा, ऐ परवरदिगारा, ये बंदा दिन में नहीं खाता था, ऐ अल्लाह ये दिन में नहीं पीता था, हलाल चीजों से बाज रहता था, ऐ अल्लाह मैं इस रोजेदार के हक में सिफारिश फरमाता हूं, अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल फरमा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये कुरान आएगा, अल्लाह के दरबार में आएगा, जिसको हमने ताकों की जीनत बना करके रखा है, हमें खोल करके पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है ना। ये कुरान मेरे आपके हक में सिफारिशी बन करके आएगा। कुरान कहेगा, है परवरदिगारा, यही वो बंदा था जो रात की तारीकी में उठ करके कुरान की तिलावत फरमाता था, ऐ अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल फरमा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते है ना, रोजे की सिफारिश और कुरान की सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा और अल्लाह ताला रोजेदार को माफ फरमा देगा। इसलिए मुसलमानों, कान खोल करके इस बात को सुनना, ये रमजान का महीना लूडो खेलने के लिए नहीं आया है, ये रमजान का महीना फिल्में देखने के लिए नहीं आ रहा है, ये रमजान का महीना ताश और पत्ते और जुए खेलने के लिए नहीं आ रहा है, ये रमजान का महीना चौराहों और चौकों और कट्टों पर बैठने के लिए नहीं आ रहा है, ये रमजान का महीना उम्मत की मां बहनों सुनो, ये सीरियल देखने के लिए नहीं आ रहा है। रमजान का महीना आ रहा है ताकि रमजान के रोजे रखो, अपना सिफारिशी बनाओ और अल्लाह के दरबार में जन्नत के मुस्तहिक बनो। कोई भी आदमी यहां जितने बैठे हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हमारा पैगाम जा रहा है, याद रखना, बिला उज्र के रमजान का एक भी रोजा नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। बिला उज्र के हीले बहाने करके अल्लाह की कसम है, यह उंगलियों पर गिनने वाला महीना है, देखते देखते गुजर जाएगा। साल भर अफसोस करोगे, बगैर किसी हीले के, बगैर किसी बहाने से अल्लाह से तौफीक मांगना। 29 आए या 30 आए, परवरदिगारा इंशाअल्लाह मुकम्मल रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जानते हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, एक रोजा भी जिसने रमजान अल
मुबारक का बगैर किसी उज़्र के, शरई उज़्र के, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी सबब के एक रोजा भी जिसने छोड़ दिया, साल भर रोजा रखेगा, अल्लाह की कसम है उसका सवाब नहीं मिल सकता है। देख लीजिए, लोग जेब में गोलियां लेकर के घूमेंगे, अल्लाह माफ फरमाए, मैं तनकीद नहीं करता हूं, लोग हीले बहाने हजार करेंगे, गर्मी का हवाला देंगे, शिद्दत का हरारत का हवाला दे करके मुझसे और आपसे बच जाएंगे, दामन बचा लेंगे। कल क़यामत के रोज अल्लाह को क्या जवाब देने वाले हैं। और जानते हैं, मैं आपको बताऊं, प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए और दो बातें और कह करके इंशाअल्लाह खुतबा मुकम्मल करेंगे। जानते हैं, प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोया हुआ था और नबी का ख्वाब ये सच्चा ख्वाब होता है, नबी का ख्वाब ये वही पर मबनी होता है। मेरे आपके ख्वाब झूठे होते, सच्चे होते, बेकार भी होते, लायानी भी होते हैं। अंबिया के सारे ख्वाब ये दीन का हिस्सा होते हैं। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, इतने में फरिश्ते आए, मेरा हाथ पकड़ करके लेकर के चलने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सामने एक पहाड़ था, पहाड़ पर लेकर के चलने लगे। मैंने कहा, मेरे बुजुर्ग साथियों, पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर मैं नहीं चढ़ सकता हूं। फरिश्तों ने सहारा दिया मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को, जो पहाड़ की ऊंचाई सतह पर ले गए। आप अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे ना, आपने देखा चीखने की आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। कुछ लोगों को उल्टा लटका दिया गया है, होठ काटे जा रहे हैं, जबान काटे जा रहे हैं, खून बह रहा है। यह मंजर देख करके ना मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम सीने में धड़कता हुआ दिल रखते थे। आप ये मंजर देख करके पूछा, मन हाउलाई हुम, अरे मेरे फरिश्तों, ये कौन लोग हैं जिनके होठों को काटा जा रहा है, जबानों को काटा जा रहा है। फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं ना जो दिन में रोजा रखते थे, लोगों के सामने रखते थे, इफ्तारी से पहले इफ्तारी कर लिया करते थे। ये हाल है उनका जो वक्त से पहले, टाइम से पहले जो रोजा तोड़ देते थे, उनका ये हाल है। और जो रोजा ही नहीं रखता मेरे भाइयों, उसका क्या हाल होने वाला है। अफसोस की बात है, 40 साल के नौजवानों को देखो, 35 साल के जवानों को देखो, ये रोजा नहीं रखते हैं, शर्म नहीं आती है इनको, हया नहीं आती है, होटलों में बैठ करके पर्दे गिरा गिरा करके खाएंगे ये। और हमारे मासूम बच्चे, 6-7 साल के बच्चे, मासूम बच्चे जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, ये शौक से सहरी में उठते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ सुभान अल्लाह इफ्तारी करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कोई भी आदमी अल्लाह के दरबार में बैठ करके अल्लाह से अहद व पैमान लेना, अल्लाह तबारक व तआला से वादा करना, परवरदिगारा पहले दिए दुआ करो अल्लाह सेहत नसीब फरमाए, अल्लाह आफियत नसीब फरमाए, अल्लाह तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और इस तंदुरुस्ती को अल्लाह तबारक व तआला, मैं रमजान के रोजे रखूंगा, अल्लाह वादा करता हूं, अल्लाह वादा निभाने की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे भाइयों, एक और बात कह करके बात में अपनी आगे बढ़ा रहा हूं, इतना खतरनाक है ये रोजा खोरी। रमजान के महीने में बिना किसी उज़्र के, शरई उज़्र के, बगैर किसी मर्ज के, बगैर किसी सबब के एक रोजा छोड़ देना कितना बड़ा गुनाह है। हमने हल्के में ले लिया है, नहीं भाई आज मैं उठ नहीं सका, मैं रोजे से नहीं हूं। बेवकूफ, किसने कहा है? सहरी नहीं खाया कोई बात नहीं है, आइंदा जुमा में उसकी तफसील आएगी। बगैर सहरी के भी रोजा होता है। और अगर सहरी नहीं खा सके हैं, अल्लाह के वास्ते आप भूख प्यास बर्दाश्त कीजिए। यही भूख और प्यास का बर्दाश्त करना ये जन्नत में जाने का जरिया है। सुभान अल्लाह। जानते काब इब्न उजरा, मशहूर रिवायत है लेकिन हमारे मौजू से ये जुड़ा हुआ मसला है। काब इब्न उजरा फरमाते हैं, जुमा का मौका नहीं था, ये आम दिन था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिंबर लाया जाए, मस्जिद नबवी के अंदर की बात हो रही है, कान खोल करके सुनना। सहाबी फरमाते हैं, हमने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर लाए, मिंबर लगाया गया। आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर चढ़ने लगे ना, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आपने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आपने आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आपने आमीन कहा। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने इंसानों को, सहाबे कराम को खिताब किया। फरागत के बाद
जब मिंबर से नीचे उतरे ना, सहाबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बार आज ऐसा मौका हुआ है कि आप मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, कदम रंजा फरमा रहे हैं और आप आमीन कह रहे हैं, क्या वजह है, क्या बात है? तीन चीजें हैं, तीन सीढ़ियां हैं, तीन बद्दुआएं हैं। अल्लाह से सबके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह महफूज रखे। जरा आमीन कहिए, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह बचा करके रखे। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कहा मेरे सहाबा जानते हो, जब मैं मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था, जिब्रील आए, अल्लाह अकबर, सैयदुल मलाइका हैं, फर्श से अर्श तक अल्लाह का पैगाम लाने वाले, रूह अमीन जिनका नाम दिया गया, ताकतवर फरिश्ता जिनका नाम दिया गया, 600 पर है जिनके, सुभान अल्लाह, अल्लाह के सबसे करीबी बंदे जिब्रील अमीन आए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोदा, ये अरबी के अल्फाज हैं, जुमा का मौका नहीं होता, मैं अपने साथ पढ़वाता था, बोदा मन अदका रमज़ाना फलम युगफर लह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बर्बाद हो जाए वो आदमी, हिलाक हो जाए वो आदमी, अरे सत्यानाश हो जाए वो आदमी। ये उर्दू के अल्फाज है, मेरे घर के अल्फाज नहीं है, ये उर्दू के अल्फाज है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सत्यानाश हो जाए वो आदमी, रमजान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सका, खेल में लगा रहा, कूद में लगे रहा, मस्ती में लगे रहा, घूमने में लगे रहा, खाने पीने का शौक था, सहरी में ये बनवा रहा है, इफ्तारी में ये बनवा रहा है और रमजान के रोजे नहीं रख रहा है, न कुरान पढ़ रहा है, न कुरान खोल के देख रहा है, न सदका दे रहा है, न खैरात दे रहा है, कुछ नहीं। रमजान आया चले गया, इस एहसास तक नहीं हुआ, ये अपने आप को बदल नहीं सका, ये ईमान के साँचे में ढाल नहीं सका। मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी हिलाको बर्बाद हो जाए, रमजान का महीना मिला और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना सका। और आप अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, कहते मैं दूसरी सीढ़ी पर कदम रखने लगा ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये कहा वो आदमी भी हिलाक को बर्बाद हो जाए जिसके सामने नबी का नाम आए और दरूद ना पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदमी भी हिलाक को बर्बाद हो जाए, नबी का नाम लिया जा रहा है, मोहम्मद लफ्ज आ रहा है और इख्तिसार में क्या कहना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ रहा है, इतना बड़ा बखील है, ये आदमी भी हिलाक को बर्बाद हो जाए। और तीसरा वो आदमी, हिलाकत है उसके लिए, बर्बादी उसके लिए जिसने माँ बाप को पाया, दोनों को पाया, बुढ़ापे में पाया या माँ और बाप में से एक को पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं कमा सका, ऐसी औलाद के लिए भी बर्बादी है, नऊज़ुबिल्लाह। सुनिए जरा सुनिए ना, जानते हैं बद्दुआ देने वाले कौन है? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। अल्फाज कहाँ, बद्दुआ कहाँ दी जा रही है? मस्जिद नबवी में, जिसे मेरे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मिंबर का जो मेरा हिस्सा है ना, वो जन्नत की कियारियों में कियारी है, सुभान अल्लाह। सऊदी अरब अल ममलकतुल अरबिया सऊदिया ने वहां ग्रीन निशान लगा दिया है, वो जन्नत की कियारी है, बद्दुआ वहां दिया जा रहा है। देने वाले कौन है? सैयदुल मलाइका, और सैयदुल मलाइका की बद्दुआ पर आमीन कहने वाले सैयदुल अंबिया, सैयद वलद आदम, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन। चलिए एक बार कहिए, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं गुनहगार हूं, आप भी गुनहगार हैं, हम सब खताकार हैं, गुनाहों में डूबे हैं, लेकिन हमारे आपके जब हाथ उठते हैं ना, दुआ मांगते हैं, अल्लाह से यकीन होता है अल्लाह कबूल फरमाएगा। और जिस बद्दुआ पर जिब्रील बद्दुआ दे और उस बद्दुआ पर आमीन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, वो कबूल नहीं होगी क्या मेरे भाइयों? वो कबूल होगी। इसलिए अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको परवरदिगारा रमजान के रोजे मुकम्मल रखने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। दुनिया में हम देखते हैं ना, जब कोई हुकूमत का मेहमान होता है ना, वीआईपी आदमी होता है ना, वीआईपी गेट से लाया जाता है, सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जब तक वो वीआईपी आदमी का
کا गुजर नहीं होता है, रास्ता नहीं खोला जाता है, सारे ट्रैफिक बंद कर दिए जाते हैं, वीआईपी आदमी को वीआईपी लॉन्च में ठहराया जाता है, वीआईपी तरीके से दाखिला होता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, स्पेशलिस्टी उसको अलग से रास्ता दिया जाता है। ऐ रोजेदारों, ये दुनियादारों का हाल है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मेरे आपके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्ना फिल जन्नति बाबा युकाल लहू अर्रय्यान। प्यारे हबीब सलाम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे। कितने हैं? 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान। रैयान हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं। बाबुर रैयान एक दरवाजे का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदारों का दाखिला होगा। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। बुलाया जाएगा, ऐना अब्दुल्लाह, ऐना अब्दुर्रहमान, ऐना फला, ऐना अब्दुल जब्बार, कहाँ हो, आओ। ये स्पेशल दरवाजा तुम्हारे लिए, किस लिए जानते हो? तुमने रमजान के रोजे रखे थे ना, आज तुम्हें इसी दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। सारी दुनिया देख रही होगी और स्पेशल दरवाजे से आपका दाखिला होगा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सारे रोजेदार दाखिल हो जाएंगे, वो दरवाजा लॉक कर दिया जाएगा। और आखिरी बात कह करके 2 मिनट मेरे पास बाकी बचे, आखिरी बात कह करके बात में खत्म कर रहा हूं। रमजान पहचाना जाता है अपनी इबादत की वजह से। सुभान अल्लाह, इसमें इबादत बढ़ जाते हैं। एक बहुत बड़ी इबादत है, सब मिलकर के आज अल्लाह के दरबार में वादा करना है इंशाअल्लाह कि अल्लाह इस इबादत को कायम करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए पीछे से इंशाअल्लाह बोलिए। ये इबादत क्या है जानते हैं? क़ियामुल लैल है। ये तरावी की नमाज है। रमजान में इसे तरावी कहा जाता है, गैर रमजान में तहज्जुद कहा जाता है। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना, रमजान में बहुत सवाल आएगा, ये बार बार सवाल आएगा। रमजान में तरावी कहा जाता है, गैर रमजान में क़ियामुल लैल, तहज्जुद की नमाज इसी को कहा जाता है। ये कितनी है जानते हैं? 11 रकात है। ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। माई आयशा से किसी ने पूछा, अम्मी जान एक बात ये बताइए कि आप अलैहिस्सलाम रमजान में कितनी रकात पढ़ते थे? अम्मी जान ने कहा रमजान हो या गैर रमजान 11 रकात से ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा करते थे। सारे उलमा की किताबें हैं, सारे उलमा के फतावे हैं, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। मैं यहां पर एक पैगाम देना चाहूंगा, आप कितनी भी पढ़े कोई हर्ज नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जिसको सुन्नत कहा जाएगा, जिस पर मोहर लगी है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो 11 रकात है। कितनी है वो? 11 रकात है। अब जब आप ये कहेंगे ना, एक एतराज करने वाला उठ करके खड़ा हो जाएगा, कहेगा हजरत आप 11 की बात करते हो, हरमैन शरीफैन में 20 पढ़ी जाती है। क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे कोरोना काल में वहां भी 11 पढ़ा गया है, कोरोना काल में वहां भी 11 पढ़ा गया है, वहां आखिरी अशरे में 30 पढ़ी जाती है जनाब, कभी 20 भी पढ़ी जाती है, कभी कुछ पढ़ा जाता है। हम कहते हैं सुन्नत की जो बात है ना, वो 11 रकात है, सिर्फ आप उसके अलावा जितनी चाहे पढ़े। और एतराज करने वाले, मैं आपसे सीधा साधा सवाल करता हूं, हरमैन शरीफैन की 20 रकात तुम्हें नजर आ गई, शेख अब्दुर्रहमान सुदैस की आमीन सुनाई नहीं पड़ी? हरमैन शरीफैन पूरा आमीन से गूंज जाता, ये सुनाई नहीं दिया? शेख अब्दुर्रहमान सुदैस सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, सऊद शुरैम जोर से आमीन बोलते हैं, कबल रुकू और बाद रुकू रफौल यदैन करते हैं। फर्ज नमाजों के बाद कोई इज्तिमाई दुआ नहीं होती है, 3 बजे असर की अजान होती है, सब मिल करके खड़े होते हैं। अब्दुर्रहमान सुदैब सीने पर हाथ बांधते, ये नजर नहीं आया? कहने वाले ने बड़ा अच्छा कहा, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, अपने मसलक का नजर आया तो 20 को आपने ले लिया और बकिया सारी चीजें हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसाफ की बात करना चाहिए हमेशा मेरे भाइयों। और हम ये कहते हैं कुरान ऐसे पढ़ो, सुभान अल्लाह, कुरान का हक अदा कीजिए। तमाशा बना करके रखा, रमजान आते ही इश्तिहार लग जाएगा, शबीना शबीना शबीना, 3 दिन में कुरान खत्म, 1 दिन में कुरान खत्म। अरे 3 दिन में कुरान खत्म करके 27 दिन कहां जाते हो ये तो बताओ? 27 दिन कहां जाते हो? मसला कुरान खत्म का नहीं है, मसला है तरावी पढ़ने का। सुभान अल्लाह, क्या है? तरावी पढ़ने का। कुरान खत्म हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, तरावी आपकी ना छूटे ये जरूरी है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलिए, एक भी हमारी तरावी नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. ترجمہ نہیں کروں گا. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ